Hello my dear students. Plant excrete carbon dioxide, water vapor, oxygen by the process of respiration and photosynthesis. Yes, these are the main waste product of the plants. We know very well. But do you know, except these things, a plant also excretes some waste which are useful for human being. We can learn these waste material by using TGSSR trick. Yes, by the process of transpiration, plant lost water vapor. By guttation, plant lost water droplets. By secretion, plant lost resin, gums, latex, oils which are useful for human being. Plant also store, as for storage, plant also store some wastage material in old part or vacuoles. R for respiration, plant release carbon dioxide and water vapor by the process of respiration. So by using this trick we can learn these wastage material in a second, right? Now we will explore what are the wastage material which are used in gaseous form and which are stored in their body and which are useful for our human being. चलिए जरा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं. फर्स्टली वी विल डिफाइन व्हाट इज एक्सक्रीजन इन प्लांट. एक्चुअली विच वेस्टेज मटेरियल plants are producing by the process of respiration, by the process of photosynthesis. These are in gaseous form. So the process of removal of toxic wastage from the body of plants is called excretion in plants. As in human being we are using kidney and we have a proper excretory system, but they don't have any system. Why? Because they don't need so much energy as we need, है ना. हमारी बॉडी में क्या है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, तो हमारी बॉडी में प्रॉपर स्पेसिफिक सिस्टम दिए हुए हैं हर चीज़ के. लेकिन इन प्लांट्स को इतने ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. दैट्स वाई दे डोंट हैव स्पेशल ऑर्गन और वी कैन से ऑर्गन सिस्टम. ओके. Main waste product which are carbon dioxide, water vapor and oxygen. These are the main waste product. Now point is gaseous waste removal. Gaseous waste removal कौन से आपके बेटा? Carbon dioxide, oxygen. These are the gaseous waste removal and they produce by the process of respiration and photosynthesis. But do you know, by the process of respiration plant release carbon dioxide in night time. Why they don't release carbon dioxide in daytime? Because which carbon dioxide they are releasing by the process of respiration, this carbon dioxide is used in photosynthesis in daytime. So we can say by the process of respiration plant excrete carbon dioxide in night time. So this is the question. But in photosynthesis plants are releasing oxygen, they are using carbon dioxide and they are releasing oxygen. So this oxygen is used by the process of respiration day and night, because respiration is the process means like human being की तरह क्या करते हैं, plants भी क्या करते हैं, डे एंड नाइट कंटिन्यू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं. तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंटिन्यूसली यूज़ हो रही है. तो ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, जो डे टाइम में तो वो बना लेंगे किससे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, लेकिन नाइट टाइम में नहीं बना पाते. तो क्या होगा, नाइट टाइम में जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है उसको बेटा नाइट टाइम में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वो यूज़ करते हैं और डे टाइम में रिलीज़ करते हैं. तो इस से कंक्लूजन क्या निकलता है, गैसियस वेस्टेज रिमूवल थ्रू मीन्स क्या है बेटा मेरे कहने का, कि ऑक्सीजन कब रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज़ होती है प्लांट से. वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस पैराग्राफ. Gaseous waste removed through stomata in leaves and lenticels in stems. मीन्स जो गैस रिलीज करने की बात कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये किससे रिलीज हो रही है, हमें पता है कि स्टोमेटा से और लेंटिसेल से जो स्टेम में होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटेड ओनली एट नाइट. इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड कब बोला हमने, नाइट टाइम में रिलीज होती है. क्यों? बिकॉज डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. जो भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, उसको रिलीज कर रहे हैं कब, रेस्पिरेशन के प्रोसेस जैसे हम करते हैं ऐसे क्या है प्लांट्स भी करते हैं, और वो भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. दैट्स वाई क्या कहते हैं कि प्लांट्स के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए. क्यों? क्योंकि क्या है, प्लांट्स के नीचे रात को क्या कर रहे हैं, प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं. तो वो क्या होगी, हमारे लिए हार्मफुल होगी. एंड ऑक्सीजन एक्सक्रीटेड ओनली इन डे टाइम. These two terms are important. that डे टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है फोटोसिंथेसिस में. दैट्स वाई वी आर सेइंग कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटेड ओनली इन नाइट. फर्स्ट पॉइंट इज देयर. सेकेंड इज ऑक्सीजन एक्सक्रीटेड ओनली इन डे टाइम.
ऑक्सीजन केवल डे टाइम में। क्यों? व्हेन सनलाइट इज प्रेजेंट, क्या है, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो क्या होगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, और उसी में क्या होगा, वाटर वेपर एक्सक्रीटेड ऑल डे ऑल टाइम। क्यों? वाटर वेपर और क्या है, जो हमने बोला ऑक्सीजन एक्सक्रीटेड ओनली डे टाइम व्हेन सनलाइट इज देयर प्रेजेंट। जब सनलाइट प्रेजेंट होगी उस टाइम में क्या करेंगे, ऑक्सीजन एक्सक्रीट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर वेपर एक्सक्रीट ऑल टाइम। तीसरा प्रोडक्ट क्या हुआ आपका, वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है, पूरे टाइम क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि डे टाइम में और नाइट टाइम में, कुछ ऐसा नहीं है। तो हमें क्या याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट ओनली इन नाइट, ओके, प्लांट्स में। दूसरा, ऑक्सीजन एक्सक्रीटेड ओनली इन डे टाइम। ऑक्सीजन कब एक्सक्रीट होती है, डे टाइम में। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके। एंड वाटर वेपर एक्सक्रीट ऑल टाइम, पूरे टाइम, डे एंड नाइट दोनों टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, हाइड्रोट्स, हाइड्रोथॉट्स आर पोर्स। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि हाइड्रोथॉट्स आर पोर्स एट लीफ मार्जिन। गोटेशन इज लॉस ऑफ वाटर एज लिक्विड ड्रॉपलेट्स वाई हाइड्रोथॉट्स अर्ली मॉर्निंग। मीन्स क्या है, जैसे स्टोमेटा से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, वाटर वेपर का भी एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसी तरीके से क्या होता है, ये नई टर्म है आपके लिए, क्या होगा, हाइड्रोथॉट्स वो पोर होते हैं, स्टोमेटा के अलावा होते हैं, जो कहाँ पर होते हैं, लीफ मार्जिन पर होते हैं, और गोटेशन से क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स का रिमूवल होता है, जो क्या है, वेस्टेज मटेरियल। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका बेटा, स्टोरेज एंड रिमूवल मेथड। हमने क्या समझा कि प्लांट कुछ वेस्ट मटेरियल को स्टोर भी करते हैं। कैसे करते हैं, सम वेस्ट कलेक्ट इन लीव्स, बार्क, फ्रूट्स, प्लांट्स गेट रिड शेडिंग लीव्स। आपने देखा होगा कि क्या होगा कि जो क्या बोलते हैं, ऑटम सीजन होता है, उसमें क्या करते हैं, प्लांट्स अधिकतर अपनी लीव्स को गिरा देते हैं ना। तो क्या है, प्लांट्स गेट रिड बाय शेडिंग लीव्स, पीलिंग बार्क। ओल्ड प्लांट्स होते हैं तो उनकी जो बार्क देखने को मिलती है, मीन्स हार्ड स्टेम होती है, तो वो क्या होती है, वो पील होना शुरू कर देती है, ठीक है, एक तरीके से रिमूव होना शुरू कर देती है। वन सेकेंड, ठीक है। दूसरा क्या है, जो भी हम फ्रूट्स खा रहे हैं, राइप फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, मैंगो खा रहे हैं या फिर एप्पल खा रहे हैं, तो वो भी फ्रूट्स क्या हैं बेटा, वो भी क्या है, एक तरीके से वेस्टेज मटेरियल की फॉर्म में। क्या बोला, सम वेस्ट स्टोर्ड इन फ्रूट्स। ये इंपॉर्टेंट है, जरा देखो यहाँ पर क्या है, रेफाइट्स। क्या है, रेफाइट्स। पहला हमने क्या देखा, लीव्स, बार्क और फ्रूट्स, ये क्या करते हैं, वेस्ट हैं जो कलेक्ट कर रहे हैं, और ये क्या है, टाइम पे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। स्टोरेज किस तरीके से करते हैं, सम वेस्ट स्टोर इन फ्रूट्स, सम वेस्ट स्टोर इन फ्रूट्स एज सॉलिड बॉडीज। कुछ फ्रूट्स में क्या होता है, वेस्ट स्टोर हो जाता है सॉलिड की फॉर्म में, जिनको क्या कहा जाता है, रेफाइट्स बोला जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, रेफाइट्स बोला जाता है। एग्जाम्पल, यम जमिकन हैज़ निडल शेप्ड वेस्ट। जो किसके बने होते हैं, जिमिकन और यम और कोकेसिया प्लांट होता है, उनमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल के शेप में क्या होते हैं, निडल। अगर उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने निडल की शेप में वेस्टेज मटेरियल होते हैं, जो फ्रूट्स में सॉलिड फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। ये बात हुई आपके स्टोरेज और रिमूवल मेथड की, जो प्लांट्स फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जो देखो, अब हमने बात की कि कुछ वेस्टेज मटेरियल क्या हैं, जिनको हमने बोला गम, रेसिन, वो क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज़फुल हैं। जैसे क्या बोला, प्लांट गम्स, जो क्या करते हैं, सीक्रेट कर रहे हैं, एज फॉर सीक्रेशन। जैसे हमने पढ़ा था कि कौन सा प्रोसेस था, ट्रिक से हमने याद करा था, TGSSR। तो T फॉर ट्रांसपिरेशन, G फॉर गोटेशन, एस फॉर सीक्रेशन। सीक्रेशन में हमने किसकी बात करी थी, सीक्रेशन में हमने बात की थी रेसिन, गम्स, लेटेक्स एंड ऑयल्स। तो ये प्लांट्स के जो वेस्टेज है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए कैसे यूज़फुल है। प्लांट गम्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स गम्स कैसे यूज़फुल है, प्लांट गम्स का यूज़ किया जाता है फूड इंडस्ट्रीज़ में भी, जो जूस हैं, ब्रेड है, फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं। दूसरा क्या है, कॉस्मेटिक्स में भी प्लांट गम्स का यूज़ किया जाता है। ओवरकमिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्या है, ये प्लांट्स वेस्टेज ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल है। दूसरा क्या बोल रहे हैं हम, रेसिन। रेसिन को कैसे यूज़ करते हैं, रेसिन के क्या है, प्लांट सीक्रेट करते हैं, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, ऑइंटमेंट में यूज़ करते हैं, रूम स्प्रे में यूज़ करते हैं, सॉफ्ट्स में यूज़ किया जाता है, वार्निशिंग में यूज़ किया जाता है, सर्जिकल टेप्स में, मेटल कोटिंग में। सो वी कैन से बाय दिस स्लाइड वी कैन अंडरस्टैंड दैट दीज वेस्ट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, ठीक है।
अब जरा बात कर लेते हैं कि स्टोरेज एंड रिमूवल इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के कौन से पार्ट में हमने बात की कि स्टोर भी करते हैं, वेस्ट मटेरियल को स्टोर भी करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक पॉइंट देख लेते हैं। सम वेस्ट मटेरियल आर स्टोर्ड इन बॉडी पार्ट्स लाइक लीव्स। अभी हमने बात की कि लीव्स में, जैसे हमने देखा है कि ऑटम सीजन में प्लांट्स अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, है ना। तो क्या बोला कि सम वेस्ट प्रोड्यूस आर स्टोर्ड इन बॉडी पार्ट्स लाइक लीव्स, बार्क एंड फ्रूट्स। बार्क की जो पीलिंग होती है, जैसे ये क्या है, ऑल प्लांट है, ऑल प्लांट की जो बार्क होती है वो क्या है, पील होना शुरू कर देती है, एक तरीके से रिमूव होना शुरू कर देती है। तो वो भी क्या है, एक तरीके से वेस्टेज मटेरियल है। जो राइप फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक टाइम के बाद में प्लांट से रिमूव हो जाते हैं। तो वो भी क्या है, बोल रहे हैं कि एक स्टोर करा प्लांट के वेस्टेज मटेरियल को और कुछ टाइम के बाद में वहाँ से रिमूव हो गए। ठीक है, तो क्या बोला, हाउ प्लांट्स गेट रिड, किस तरीके से प्लांट इस वेस्टेज मटेरियल को रिमूव करते हैं, शेडिंग लीव्स, पीलिंग बार्क और फॉलिंग फ्रूट्स, इस तरीके से। ठीक है बेटा, देखो, प्लांट रिमूव वेस्ट बाय शेडिंग ऑफ लीव, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स। व्हेन ऑल लीव्स फॉल इन ऑटम, bark peel off and ripe fruits fall off, the waste inside is also removed। मीन्स जब ये मटेरियल क्या हुआ, इनकी बॉडी से अलग हुआ, तो उसके साथ साथ क्या हुआ, जो वेस्टेज मटेरियल स्टोर हो गया था वो भी रिमूव हो गया। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट टर्म क्या है आपकी, रेफाइट्स। रेफाइट्स होता है क्या एक्चुअली में, अभी बात की हमने कि कुछ प्लांट्स में क्या होता है, सॉलिड मटेरियल क्रिस्टल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। देखो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यम जेमिकन। ठीक है, अगर हम इसको कट करके क्या करें, माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस तरीके से क्रिस्टल की फॉर्म में रेफाइट्स देखने को मिलते हैं, जो क्या है आपके निडल शेप्ड कैल्शियम ऑक्जिलेट के बने हुए क्रिस्टल हैं। किसके बने हुए होते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट के बने हुए क्रिस्टल्स होते हैं, जो फ्रूट्स में सॉलिड फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, जिनको क्या नाम दिया गया है, रेफाइट्स। ठीक है, ये क्या है, स्टोर फॉर्म है वेस्ट मटेरियल की। गम और रेसिन की अभी हमने बात की कि प्लांट्स गम और रेसिन को सीक्रेट करते हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्टोर की बात हो रही है कि प्लांट्स किस तरीके से स्टोर करते हैं। ठीक है, और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो रेफाइट्स थे हमने बात की थी कि ये क्या है, निडल शेप में, इसका एक यूज़ हो रहा है, इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है कि रेफाइट्स आर निडल शेप्ड क्रिस्टल मेड ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट। किसके बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट के बने होते हैं, स्टोर्ड एज सॉलिड वेस्ट। कहाँ पर, फ्रूट्स में सॉलिड वेस्ट में स्टोर हो गए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या, दे एक्ट एज डिफेंस। किसके लिए डिफेंस का वर्क करते हैं, प्लांट्स के लिए डिफेंस का वर्क करते हैं। किससे, हर्बीवोर से, जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से डिफेंस का काम कर रहे हैं। ठीक है, द शार्प निडल डिटर एनिमल्स। ठीक है, इस तरीके से क्या बोला, द शार्प निडल डिटर एनिमल्स से बचाने के लिए ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, गम एंड रेसिन। गम एंड रेसिन क्या कर रहे हैं, सीक्रेट हो रहे हैं प्लांट की बॉडी से। प्लांट सीक्रेट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेसिन फ्रॉम स्टेम एंड ब्रांचेस। गम एंड रेसिन ooze आउट फ्रॉम द स्टेम एज अ स्टिकी वेस्ट। जैसे आप इस प्लांट की स्लाइड में देख सकते हैं, तो क्या है, गम और रेसिन क्या है, प्लांट के स्टेम से यहाँ से सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग अपने यूज़ में ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए यूज़फुल है। अदर मेथड्स क्या है, सॉयल एंड लेटेक्स। ये तो बात हुई हमारे रिमूवल और सीक्रेशन की बात। ठीक है, दूसरे मटेरियल क्या है, सॉयल एंड लेटेक्स। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉयल अराउंड देयर रूट्स। रूट्स के चारों तरफ भी क्या है, कुछ वेस्ट को रिलीज करते हैं। अदर वेस्टेज आर स्टोर्ड एज लेटेक्स। किसकी फॉर्म में, लेटेक्स की फॉर्म में। टैनिन, एल्केलॉइड एंड एसेंशियल ऑयल, रेसिन एंड गम्स इन ऑल जाइलम वैक्यूल्स। कहाँ पर स्टोर करते हैं ये एक्सक्रीट किया कुछ वेस्टेज मटेरियल को, और कहाँ पर स्टोर हो गई है, ऑल्ड जाइलम वैक्यूल्स, बार्क एंड लीव्स। ठीक है, अब ये सारे वेस्टेज मटेरियल आप किस फॉर्म में याद करेंगे, TGSSR की ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है, ट्रांसपिरेशन, गोटेशन, सीक्रेशन, स्टोरेज एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को रिमूवल की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। अगर हम इस ट्रिक से याद रखेंगे तो कभी भी ये भूलेंगे नहीं कि कौन सा पॉइंट हमारा छूट गया है। ठीक है बेटा, अब जरा रेफाइट्स एंड गोटेशन, दो टर्म बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इनको जरा थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। व्हाट आर द रेफाइट्स एंड गोटेशंस। ठीक है, रेफाइड क्या, अभी हमने बात की है कि रेफाइड क्या है, रेफाइड इज अ निडल शेप्ड क्रिस्टल मेड ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट। इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ सॉलिड, किसका, टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट स्टोर्ड इन प्लांट टिश्यू स्पेशली इन ओल्डर जाइलम वैक्यूल्स। कहाँ पर स्टोर किया जाता है, ओल्डर जाइलम, जहाँ पर हमने बात की थी जाइलम पानी के लिए यूज़ करते हैं, जो भी वेस्कुलर टिश्यू है। ठीक है,
तो यहाँ पर जाइलम में क्या स्टोर हो जाते हैं आपका रेफाइड्स, नीडल के शेप में क्रिस्टल होते हैं जो किसके बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। कौन से प्लांट्स में मिलते हैं, जमीकन, कॉकेसिया, नीडल शेप्ड क्रिस्टल है, ठीक है। नेक्स्ट के स्टोर्ड एट सॉलिड वेस्ट टू रिमूव एक्सेस कैल्शियम एंड टॉक्सिक ऑक्जेलेट। किसके लिए, क्यों सॉलिड वेस्ट यहाँ पर स्टोर हुआ, क्यों, क्योंकि बेटा क्या बात हो रही है यहाँ पर, एक्सेस कैल्शियम एंड टॉक्सिक ऑक्जेलेट रिमूव करने के लिए कैल्शियम और टॉक्सिक ऑक्जेलेट जो क्या है प्लांट मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से प्रोड्यूस हुआ है। एक्ट्स एज अ डिफेंस के लिए यूज़ होता है प्लांट्स के लिए, जो हर्बीवोर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम इसी ट्रिक से हम बेटा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गोटेशन। गोटेशन होता है क्या एक्चुअली में, ठीक है। गोटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लीफ मार्जिन से। अब जरा हमें यहाँ ध्यान रखना है कि गोटेशन और जो हम ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं, क्या दोनों सेम है या दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमने बात की कि गोटेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर है, कहाँ से, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द लीफ मार्जिन। कहाँ से, लीफ मार्जिन, लीफ सरफेस की बात नहीं हो रही, कहाँ पर बात हो रही है, लीफ मार्जिन से थ्रू टाइनी पोर्स। किसकी बात हो रही है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स। जो हम ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं वहाँ पर किसकी बात होती है, वाटर क्या करता है, वाटर वेपराइज होता है। यहाँ पर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स की बात हो रही है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझेंगे अभी, ठीक है। गोटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द लीफ मार्जिन थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड। अब ये टाइनी पोर्स को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोथॉट्स। क्या बोलते हैं यहाँ पर टाइनी पोर्स को, हाइड्रोथॉट्स, ठीक है। अकर्स एज स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन लीफ मार्जिन यूजुअली इन अर्ली मॉर्निंग। टाइमिंग देखो जरा यहाँ पर क्या है, अर्ली मॉर्निंग या नाइट टाइम में ये प्रोसेस होता है। हैपेंस व्हेन, अब कंडीशन क्या दी है, हैपेंस व्हेन सॉइल इज मॉइस्ट, जब क्या है सॉइल में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लो है। रूट प्रेशर पुशेज, रूट के प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये जो वाटर है ये हाइड्रोथॉट्स के थ्रू बाहर एक्सेल कर दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं गोटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। द लिक्विड इज वाटर मिक्सड विद डिजॉल्व्ड मिनरल्स। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो लिक्विड, जिसको क्या बोला कि रूट प्रेशर की वजह से एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो क्या हुआ उसमें क्या होते हैं, डिजॉल्व्ड मिनरल्स और सुगर्स भी डिजॉल्व होते हैं। नॉट जस्ट प्योर वाटर वेपर, केवल प्योर वाटर वेपर नहीं होता, जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में वाटर वेपर क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, ठीक है। अकर्स मोस्टली व्हेन, अब कंडीशन देखिए बेटा, एक पहला क्या बोला कि सॉइल में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपिरेशन की कंडीशन क्या है, लो है। रूट प्रेशर क्या होता है, पुश करता है किसको, वाटर और उसमें डिजॉल्व मिनरल्स और शुगर को, जिसकी वजह से क्या है ये गोटेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है, अर्ली मॉर्निंग में या नाइट टाइम। अकर्स मोस्टली व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई, कब, किस कंडीशन में, जब ह्यूमिडिटी की कंडीशन बहुत ज़्यादा हाई होती है और स्टोमेटा क्या होंगे उस टाइम में क्लोज होंगे, ठीक है। अब ये कौन सा पार्ट था हमारी ट्रिक का, जी फॉर गोटेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस एज ड्रॉपलेट इन अर्ली मॉर्निंग या नाइट टाइम, ठीक है। ये क्लियर हुआ, रेफाइड एंड गोटेशन। एंड नाउ वी विल सी हाइड्रोथॉट्स। हाइड्रोथॉट्स बेटा क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जब भी मैंने ये इंक्लूड किया है बेटा, ठीक है। हाइड्रोथॉट्स एंड गोटेशन कैसे रिलेट करते हैं, अभी हमने बात की कि जो टाइनी पोर्स होते हैं लीफ मार्जिन में, ठीक है, लीफ के मार्जिन पर जो टाइनी पोर्स हैं उन्हीं को क्या हम बोल रहे हैं, हाइड्रोथॉट्स, ठीक है। हाइड्रोथॉट अगर हम देखें तो लीफ मार्जिन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो हाइड्रोथॉट इज अ टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, पोर स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टोमेटा भी होते हैं। तो क्या दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है डेफिनेटली। देखो हाइड्रोथॉट इज अ टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द लीफ मार्जिन, कहाँ की बात हुई, लीफ मार्जिन की एजेस में, प्लांट में ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इट इज़ अ वाटर पोर, क्या है, इट इज़ अ वाटर पोर थ्रू विच द प्रोसेस ऑफ गोटेशन हैपेंस। अब इन वाटर पोर से क्या होता है, गोटेशन का प्रोसेस होता है, मीन्स वाटर ड्रॉपलेट्स और उसमें डिजॉल्व्ड मिनरल्स बाहर निकलते हैं। कब, अर्ली मॉर्निंग या नाइट टाइम में। अनलाइक स्टोमेटा विच आर ऑन द, किसकी तरह, स्टोमेटा की तरह नहीं है, जो कहाँ पर होते हैं, स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीफ सरफेस पर होते हैं और उसके साथ में क्या होती हैं वहाँ पर गार्ड सेल्स होती हैं, और जो क्या होती हैं, दैट ओपन एंड क्लोज, वो क्या करती हैं, ओपन और क्लोजिंग का काम करती हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोथॉट्स होते हैं ये पूरे टाइम क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। क्या बोला, हाइड्रोथॉट्स आर लोकेटेड एट द लीफ एज एंड रिमेन ऑलवेज ओपन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोथॉट अगर हम देखें तो हाइड्रोथॉट किसके बने होते हैं,
हाइड्राथोड आ पोर ओपनिंग ऑफ द लीफ मार्जिन, किसके बने होते हैं? लीफ मार्जिन में पोर है जो क्या है? द वाटर पोर, जिनको हम बोलेंगे वाटर पोर। एपिथेलियल टिश्यू, क्या बोला? एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम डायग्राम में देखें तो क्या है यहाँ पर? एपिथेलियल टिश्यू, लूज सेल्स क्या है? एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या है? लूज सेल्स हैं, जैसे यहाँ पर है। बिलो द पोर, पोर के नीचे क्या होती हैं? एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जो कैसी होती हैं? सेल्स, ये लूज होती हैं। थर्ड क्या है आपका? एंडिंग ऑफ जाइलम वेसल्स। एक सेकेंड जो इसको थर्ड टाइम क्या है? एंडिंग ऑफ जाइलम वेसल्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द रूट हाई प्रेशर। ठीक है, क्या बोला? जाइलम वेसल्स की एंडिंग से ये वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स ऊज आउट होती हैं थ्रू द पोर्स एज लिक्विड ड्रॉपलेट्स। फंक्शन क्या है? अब इन हाइड्राथोड का फंक्शन क्या बोला? द फंक्शन इज टू रिमूव एक्सेस वाटर एज लिक्विड ड्रॉपलेट्स व्हेन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इज लो। दिस हैपन्स ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग और एट नाइट, ये कंडीशन हमने बता दी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे डिफरेंस पूछ लेता है, व्हाट आर द हाइड्राथोड्स एंड स्टोमेटा, आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? ठीक है, लोकेशन दोनों की क्लियर है। एट द लीफ मार्जिन और एजेस क्या है? हाइड्राथोड्स हैं। दूसरा क्या? ऑन द लीफ सरफेस मोस्टली ऑन द लोअर साइड। ओपनिंग क्या? ऑलवेज ओपन, नो गार्ड सेल्स, कहाँ पर? हाइड्राथोड्स में। लेकिन स्टोमेटा में क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होती हैं, ओपन्स भी होती हैं और क्लोज भी होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंडीशन। ठीक है, एंड गैसेस कंडीशन ऑल्सो। ठीक है, वाट इज रिलीज, रिलीज क्या हो रहा है? अब देखो स्टोमेटा में अगर हम देखते हैं वहाँ पर वाटर वेपर भी रिलीज होती है और उसके साथ में गैसेस भी रिलीज होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। लेकिन हाइड्राथोड्स में क्या होता है? ऑलवेज का लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स विद डिजोल्व मिनरल्स। ठीक है, किस प्रोसेस से? गोटेशन की प्रोसेस से। और वहाँ पर क्या प्रोसेस था आपका? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस था। कब होता है? टाइमिंग क्या है? स्टोमेटा का टाइमिंग क्या बोला हमने? ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। जब हमने बात की कि ऑक्सीजन क्या है, कब रिलीज हो रही है? ड्यूरिंग डे के टाइम में, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस से। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन कब रिलीज होती है? सनलाइट की प्रेजेंस से। कब होगी? सनलाइट से ध्यान रहेगा कि डे टाइम में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नाइट टाइम में, क्योंकि दिन में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो रही है। अब इनको कौन रिलीज़ करता है? इनको भी रिलीज़ कौन करता है? स्टोमेटा करता है। लेकिन हमारा जो हाइड्राथोड है, जो पोर है वाटर, जिसको नाम ही हम क्या दे रहे हैं? वाटर पोर है, तो क्या कर रहा है? अर्ली मॉर्निंग और नाइट ड्यू टू रूट प्रेशर की वजह से वहाँ से क्या होता है? वाटर बाहर निकलता है। किस में? गोटेशन के थ्रू। अब ये किसकी बात हुई? यहाँ पर जो हमने ट्रिक यूज़ की थी TGSSR, यहाँ पर बात कर रहे हैं G फॉर गोटेशन और यहाँ पर बात हो रही है ट्रांसपिरेशन, लास्ट वर्ड है। ठीक है, तो जब भी आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे याद आ जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बेटा कुछ MCQ कर लेते हैं जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाए। फर्स्ट आपका व्हाट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है आपके? हमने बात की कि निडल शेप्ड क्रिस्टल है जो किसके बने हुए? कैल्शियम ऑक्सीलेट के बने हुए। ग्रेफाइट्स आर फाउंड कहाँ पर बोला हमने? कोकोसिया, सॉरी कोलोकेसिया बाय मिस्टेक, है ना, यम जमीकंद इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? ग्रेफाइट इज पार्ट ऑफ विच ट्रिक। ग्रेफाइट के अगर हम ट्रिक से हम याद रखेंगे तो क्या याद रहेगा हमें? ग्रेफाइट्स स्टोर हैं, क्या है? सॉलिड वेस्ट है, कहाँ पर? क्रिस्टल की फॉर्म में स्टोर होता है, ऑल जाइलम वैक्यूल्स में। ठीक है बेटा, फंक्शन ऑफ ग्रेफाइट बिसाइड वेस्ट स्टोरेज। ग्रेफाइट्स का दूसरा काम क्या है? एक तो है वेस्ट स्टोरेज की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। दूसरा क्या बोला? डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स। ग्रेफाइट क्या हुआ? सॉलिड क्रिस्टल वेस्ट हर्बीवोर्स इनसाइड टिश्यू। व्हाट इज गोटेशन? गोटेशन क्या हुआ? अभी हमने बोला था क्या है? लॉस ऑफ वाटर एज लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम लीफ मार्जिन। टर्म ध्यान से देखनी है, कहाँ पर? फ्रॉम लीफ सरफेस है तो क्या होगा? दूसरी टर्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर गोटेशन की बात कर रहे हैं तो क्या बोला? लीफ मार्जिन से। किस प्रोसेस से? हाइड्राथोड से। अर्ली मॉर्निंग या नाइट मिलाओ। गोटेशन अकर्स कब होता है? जब सोइल क्या है? मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपिरेशन लो है, रूट प्रेशर, पुश वाटर, ये कंडीशन से। गोटेशन लिक्विड एज। गोटेशन लिक्विड में और क्या क्या होता है? वाटर मिक्सड विद डिजोल्व मिनरल्स एंड शुगर, नॉट जस्ट प्योर वेपर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गोटेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है क्या है? वेपर वाया स्टोमेटा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का
को प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्या है, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है। पी से ध्यान रखेंगे, पी फॉर वाटर वेपर, ठीक है। और कब होता है, ऑल टाइम डे एंड नाइट, ऑल टाइम डे एंड नाइट हो रहा है कब, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। लेकिन गोटेशन का जो प्रोसेस है कब है, अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट टाइम में, और वहाँ पर कंडीशन चेंज है। अब यहाँ पर देखो जाए, एक क्वेश्चन दे दिया है असर्शन बेस्ड में, रेफाइड इज सॉलिड वेस्ट, रेफाइड को क्या बोला, सॉलिड वेस्ट है। गोटेशन इज लिक्विड वेस्ट ड्रॉपलेट्स, रीजन क्या दिया है, रेफाइड क्या है, कैल्शियम ऑक्सिलेट है, कैल्शियम ऑक्सिलेट की फॉर्म में स्टोर्ड है। गोटेशन वाटर ड्रॉपलेट्स लॉस्ट वाया हाइड्रोथोर्स, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है, दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। पहला क्या बोला, रेफाइड इज सॉलिड वेस्ट, रेफाइड को क्या बोला, सॉलिड वेस्ट है। और गोटेशन क्या है, लिक्विड वेस्ट ड्रॉपलेट, रीजन क्या बोला, रेफाइड कैल्शियम ऑक्सिलेट के बने होते हैं, दैट्स वाई दे आर सॉलिड, ठीक है। गोटेशन क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स का को बोल रहे हैं किसके थ्रू, हाइड्रोथोर्स के थ्रू। तो दोनों ही क्या है, ट्रू हैं, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। इसी तरीके के क्या है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं असर्शन बेस्ड में, जो आज हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, ठीक है। पहले जरा कुछ MCQ कर लेते हैं, लास्ट में हम असर्शन बेस्ड को भी सॉल्व करेंगे। उनमें से क्या है, कुछ बोर्ड एग्जाम से भी लिए हुए हैं बेटा। वेयर आर हाइड्रोथोर्स लोकेटेड, कहाँ पर बोला, लीफ मार्जिन पर। वेयर आर स्टोमेटा लोकेटेड, स्टोमेटा कहाँ, लीफ सरफेस मोस्टली लोअर साइड। हाइड्रोथोर्स ओपन, हाइड्रोथोर्स ओपन कब होते हैं, अर्ली मॉर्निंग और नाइट टाइम में, ठीक है। स्टोमेटा ओपनिंग क्या है, स्टोमेटा ओपन कब, हैज़ गार्ड सेल्स ओपन एंड क्लोज, केवल ओपन ही नहीं होते, क्लोजिंग भी होती है। व्हाट इज रिलीजिंग बाय हाइड्रोथोर्स, क्या रिलीज होता है, लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स गोटेशन के प्रोसेस से। व्हाट इज रिलीज्ड बाय स्टोमेटा, स्टोमेटा से क्या रिलीज होगा, स्टोमेटा से हमने बोला था क्या था, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस था, वाटर वेपर रिलीज होता है। व्हेन डज गोटेशन वाया हाइड्रोथोर्स अकर, गोटेशन हाइड्रोथोर्स से कब होता है, टाइमिंग पूछा है तो क्या बोला, अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट टाइम। ट्रांसपिरेशन वाया स्टोमेटा अकर्स, स्टोमेटा से किस टाइम होगा, यहाँ पर बोला ऑल टाइम ट्रांसपिरेशन है, तो ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर वेपर को क्या कर रहा है, वेपोराइज करा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिक पूछ लिए कि हाइड्रोथोर्स बिलोंग्स टू, हाइड्रोथोर्स किससे बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, गोटेशन प्रोसेस से, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, गोटेशन। डिफरेंस हाइड्रोथोर्स और स्टोमेटा, यह अभी हमने देखा था कि हाइड्रोथोर्स क्या है, रिलीज करते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स को अर्ली मॉर्निंग में, जबकि स्टोमेटा क्या कर रहे हैं, स्टोमेटा रिलीज वाटर वेपर ऑल डे, और साथ साथ क्या है, गैसेस को भी रिलीज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इन प्लांट्स के अलावा कुछ एनिमल्स हैं जो क्या हैं, जिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं स्पेसिफिक, किसकी बात कर रहे हैं हम, एक तो सिंगल सेल्ड एनिमल अमीबा की, दूसरा क्या है आपका अर्थवॉर्म। अगर हम अमीबा में एक्सक्रीजन देखते हैं तो हमें ये पता है कि अमीबा क्या है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू CO2 को एक्सक्रीट करता है, लेकिन क्या उसके अलावा भी कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलता है जो क्या करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेगा। चलिए बेटा देखते हैं क्या है। अगर अमीबा का स्ट्रक्चर देखें तो अमीबा क्या है, इरेगुलर स्ट्रक्चर है। अमीबा में जो CO2 है, CO2 किसके थ्रू रिलीज होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये तो आप ध्यान रखेंगे कि CO2 का एक्सचेंज क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन से हो रहा है। वेस्ट मटेरियल CO2 इज रिमूव्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन, प्रोसेस क्या था, डिफ्यूजन से, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है, जो अमोनिया बन रहा है, जो भी वाटर एनिमल्स होते हैं उसमें किस फॉर्म में बनता है, जो वेस्टेज मटेरियल है अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, यूरिन की फॉर्म में रिलीज होता है यूरिया से, लेकिन वाटर एनिमल्स में अमोनिया की फॉर्म में। तो क्या बोला, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, किसके थ्रू, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिख रही है इसके थ्रू क्या रिलीज होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होगा उनकी बॉडी से। कैसे रिलीज होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज स्मॉल क्लियर वैक्यूल कलेक्ट अमोनिया, क्या करती है, अमोनिया और वाटर को कलेक्ट करेगी एंड बस्ट आउटसाइड रिमूव वेस्ट, और क्या होती है, बाहर जाकर बॉडी से बस्ट हो जाती है। इट एक्ट्स एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा, ठीक है। किसके लिए, नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन का वर्क कर रही है। सेकंड ले लेते हैं अर्थवॉर्म। सेकंड किसकी बात कर रहे हैं, अर्थवॉर्म की। अब अर्थवॉर्म में क्या है, उसकी स्किन क्या है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है, लेकिन उसके अलावा भी क्या होते हैं, नेफ्रिडिया होते हैं जो क्या करेंगे, उसके वेस्टेज मटेरियल को रिमूव करेंगे, ठीक है। अरे यार देखो बेटा,
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रीडिया, जो क्या है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो नेफ्रीडिया के थ्रू है, उनको क्या बोल रहे हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किसके अर्थवॉर्म में। मॉइस्ट स्किन ऑल्सो एक्ट, उसकी जो मॉइस्ट स्किन है जैसे यहाँ से देख रहे हैं तो क्या है यहाँ पर भी क्या है ये भी वेस्टेज मटेरियल को रिमूव कर रही है। इन अर्थवॉर्म ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रीडिया are the excretory organ. In addition to nephridia, the moist skin of earthworm also act as excretory organ. नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया एन से ध्यान रखेंगे आप, एन से नेफ्रीडिया, एन से नाइट्रोजिनस वेस्ट किस में रिमूव हो रहा है, अर्थवॉर्म में। ठीक है, दोनों टर्म को अगर हम रिलेट कर लेते हैं तो अधिकतर जहाँ पर टर्म रिलेट हो जाती है तो वहाँ पर ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर हम कनेक्शन रहेगा तो हमें याद रहेगा। ठीक है, अर्थवॉर्म स्किन इज मॉइस्ट स्किन एंड परमिएबल, अलाउ डिफ्यूजन ऑफ वेस्ट गैसेज। जैसे अमीबा में हमने बात की थी कि गैसेस फॉर्म क्या है, CO2 रिलीज हो रही है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसी तरीके से अर्थवॉर्म में क्या होता है गैसेस जो CO2 की फॉर्म में वो रिलीज होगी मॉइस्ट स्किन से, लेकिन जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज मटेरियल है वो रिमूव होगा नेफ्रीडिया के थ्रू, जो क्या है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो क्या है अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, लाइक दिस। अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि क्या है अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या कर रही है, नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव कर रही है। एक सेकेंड रुको, हाँ। इसी तरीके से अर्थवॉर्म में क्या है नेफ्रीडिया, एन फॉर नेफ्रीडिया, एन फॉर नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अगर दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है कि दोनों की अगर कंपेयर कर दो तो कंपेयर करने के लिए हमने देखा कि यहाँ पर क्या है अमीबा और एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या देखा, नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। कहाँ पर अमीबा में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं, केवल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस कवर कर रही है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रही है जो क्या था, अमोनिया था। लेकिन अर्थवॉर्म में क्या है ट्यूबुलर नेफ्रीडिया, स्पेशल ऑर्गन है जिनको बोल रहे हैं ट्यूबुलर नेफ्रीडिया, और प्लस क्या है मॉइस्ट स्किन। वेस्ट रिमूवल क्या है, डिफ्यूज़न थ्रू सेल मेम्ब्रेन, डिफ्यूज़न के थ्रू क्या रिलीज होता है आपका CO2, और दूसरा क्या है अमोनिया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। लेकिन अर्थवॉर्म में अगर देखते हैं नेफ्रीडिया और मॉइस्ट स्किन क्या कर रही है, डिफ्यूज़न ऑफ CO2 एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट। दूसरी तरफ देखेंगे तो क्या है नेफ्रीडिया किसको रिलीज करेगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट को, और मॉइस्ट स्किन किसको रिलीज करेगा, CO2 को। टाइप क्या है आपका सिंपल डिफ्यूज़न, सिंगल सेल्ड है, और यहाँ पर क्या है मोर डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अर्थवॉर्म में क्या है, क्योंकि अर्थवॉर्म क्या है इन कंपैरिजन टू अमीबा क्या है मल्टी सेल्यूलर है, तो वहाँ पर क्या होगा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है नेफ्रीडिया की फॉर्म में डेवलप हो चुका है, वही क्या है उसके मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। दोनों में अगर डिफरेंस देखने को मिलता है। अब इससे रिलेटेड क्या है बेटा, कुछ PYQs कर लेते हैं। देखो जरा, प्लांट एक्सक्रीट करते हैं वाटर को, किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, किस फॉर्म में बोला, ट्रांसपिरेशन। P से ध्यान रखेंगे, ट्रांसपीरेशन, P से पानी। ठीक है, विच इज़ नॉट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, यूरिया नहीं है, जो हम ह्यूमन बीइंग में बनता है यूरिन में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, गोटेशन लॉस ऑफ वाटर एज, गोटेशन क्या है ड्रॉपलेट्स वायत हाइड्रोथोड्स। रेसिन एंड गम्स आर स्टोर्ड, रेसिन एंड गम्स किस में स्टोर हो जाते हैं, ऑयल जाइलम में स्टोर हो जाते हैं। देखो जरा, एक असर्शन बेस्ड यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। प्लांट डोंट हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, रीज़न क्या है, प्लांट स्टोर वेस्ट इन डेड टिश्यू, ऑयल जाइलम, बार्क, लीव्स। क्या बोल रहे हैं कि ट्रू है, और दूसरा क्या है एक्सप्लेन कर रहा है क्यों नहीं होता है वहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि उनमें क्या है डिफरेंट मेथड देखने को मिलते हैं। कौन कौन से थे आपके जो हम ध्यान रखेंगे, TGSSR से। ठीक है बेटा, इधर देखते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस। प्लांट एक्सक्रीट O2, अब यहाँ पर देखो जरा O2 को पूछ लिया कि O2 किस टाइम में रिलीज करते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि कंफ्यूज क्यों, क्योंकि किस टाइम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टोमेटा, टाइम का भी एक क्वेश्चन आएगा, जरा देखेंगे। प्लांट एक्सक्रीट O2 ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग के टाइम डे टाइम में किससे एक्सक्रीट हो रहा है, स्टोमेटा से। विच वेस्ट प्रोडक्ट इज़ अ यूजफुल एसेंशियल ऑयल, कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है जो क्या है ऑयल की फॉर्म में यूज़ होता है, यूकेलिप्टस ऑयल। ठीक है, वेस्ट फॉर प्लांट बट यूजफुल फॉर अस। विच टिश्यू इज नॉट नीडेड फॉर एक्सक्रीजन इन प्लांट्स, कौन सा टिश्यू नीड नहीं है, किडनी की नीड नहीं होती है प्लांट्स में, वो हम ह्यूमन बीइंग में यूजफुल है। ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एक्सक्रीजन, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हेल्पफुल होता है किसमें, एक्सक्रीजन में। दूसरा क्या है वाटर एसेंट, वाटर एसेंट का प्रोसेस हमने देखा था कि प्लांट्स
का एक चैप्टर, एक वीडियो मैंने डाली हुई है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि वाटर एसेंट क्या है, सक्शन फूल क्या है, ये सारी टर्म्स वहाँ पर दी हुई हैं। लीफ फॉल्स हेल्प प्लांट टू, जो लीफ की फॉलिंग होती है बेटा वो किस लिए हेल्पफुल होती है प्लांट के लिए, वो किस के लिए होती है, रिमूव वेस्ट एक्यूमुलेटेड इन लीव्स। मेन वेस्ट प्रोडक्ट बाय प्लांट आर, मेन वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, जो हमने बात की थी कि CO2, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन, ये क्या है, मेन वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो किस फॉर्म में बनते हैं, आपके गैसेस फॉर्म में बनते हैं। CO2 की अलग कंडीशन है, CO2 नाइट टाइम में और O2 क्या है, डे टाइम में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वाटर वेपर क्या होता है, डे एंड नाइट बनता है, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या बनता है बेटा, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज यूज़ हो रहा है, रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी क्या है, ग्लूकोज यूज़ हो रहा है, लेकिन रिलीज़ क्या होता है वहाँ पर, CO2, H2O और ATP, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ATP भी रिलीज बनती है, जो ऐसे हम ह्यूमन बीइंग में बनती है। देखो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वेस्ट प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा आपका, O2 होगा, ठीक है। गैसियस वेस्ट CO2 एंड O2 वाटर वेपर रिमूव्ड थ्रू, CO2, O2 एंड वाटर वेपर किस कहाँ से रिलीज होते हैं, आपके स्टोमेटा से, ठीक है। प्लांट एक्सक्रीट CO2 एज वेस्ट एट नाइट टाइम, वाई, रीज़न क्या है कि CO2 नाइट टाइम में क्यों रिलीज होता है, क्योंकि जो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस डे एंड नाइट चलने वाला प्रोसेस है, तो वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जैसे शेडिंग ऑफ लीफ, पीलिंग ऑफ बार्क, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स हेल्प इन, अब इनका वर्क क्या है, क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट स्टोर्ड इन लीव्स बार्क फ्रूट्स। रेफाइट्स क्या हैं, सॉलिड बॉडीज स्टोर्ड इन फ्रूट्स, एग्जाम्पल किसका दे दिया, यम, जेमिकन, निडल, निडल शेप्ड में क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने हुए सॉलिड वेस्ट होते हैं फ्रूट्स में। प्लांट सीक्रेट वेस्टेज, प्लांट किस फॉर्म में वेस्ट को सीक्रेट करता है, सीक्रेट करने की बात हो रही है, सीक्रेशन, तो क्या हो रही है, गम एंड रेसिन फ्रॉम स्टेम एंड ब्रांचेस। इन अमीबा CO2 इज रिमूव, CO2 गैसियस फॉर्म, तो कहाँ से होगी, सेल मेम्ब्रेन से। अर्थ फॉर्म एक्सक्रीजन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर, अर्थ फॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं आपके, नेफ्रीडिया और मॉइस्ट स्किन देखने को मिलती है, ठीक है। अब बेटा जी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए। देखो जरा अभी हमने इतनी सारी बातें करी, इतना सारा एक्सप्लेनेशन करा, देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, किस तरीके से प्लांट इन एक्सक्रीटरी वेस्टेज से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम ध्यान रखेंगे अपनी ट्रिक TGSSR, ठीक है। ये 5 वेस्टेज हैं। प्रोसेस भी हमें ध्यान रखेंगे, T फॉर ट्रांसपिरेशन, G फॉर गुटेशन, S फॉर स्टोरेज, S फॉर सीक्रेशन एंड R फॉर, चाहे आप रिमूवल समझ लो या R फॉर एस्पिरेशन, ठीक है। ये सारे प्रोसेस ध्यान रहेंगे कि प्लांट्स के एक्सक्रीटरी वेस्टेज कौन से हैं और किस तरीके से करते हैं, तो वहाँ पर प्रोसेस भी पता है और हमें वेस्टेज मटेरियल भी पता है, ठीक है। कोई भी सिस्टम नहीं होता, अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, फर्स्ट लाइन क्या होगी आपकी, नो सिस्टम स्टोमेटा रिलीज O2 एंड CO2 इन वायर ट्रांसपिरेशन एज वाटर वेपर, ये हमें पता है, ठीक है। गोटेशन रिलीज वाटर एज ड्रॉपलेट्स वायर क्या है, हाइड्रोथोर्स, वेस्ट स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, जो वेस्ट था किसकी बात कर रहे थे हमने, किसकी बात की थी, हाइड्रोथोर्स, गोटेशन, और थर्ड टर्म और थी जो क्या थी आपकी, वैक्यूल्स में, ऑयल जाइलम में, रेसिन और गम्स की फॉर्म में स्टोर किया था, ठीक है। एक वेस्ट मटेरियल और था जो क्या था, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ था, जो फ्रूट्स में सॉलिड फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। अब उसका नाम क्या है वो आप देंगे कमेंट बॉक्स में। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डू प्लांट एक्सक्रीट गैसियस वेस्ट, गैसियस वेस्टेज की बात हो रही है, तो O2 रिलीजिंग ड्यूरिंग डे टाइम वाया स्टोमेटा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड CO2, दोनों के बारे में लिख देंगे। और दूसरा क्या है आपका बेटा, व्हाट आर हाइड्रोथोर्स, व्हाट इज गोटेशन, हाइड्रोथोर्स क्या, गोटेशन क्या, ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि हाइड्रोथोर्स, थॉट्स मीन्स स्पोर्स, कहाँ पर, लीफ मार्जिन पर। गोटेशन क्या हुआ, लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट यूजफुल टू ह्यूमन, कौन से प्लांट प्रोडक्ट हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल हैं, तो हमने देखा था यहाँ पर क्या है, रेजिन, गम, लेटेक्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, ठीक है।
असेंशियल ऑयल में क्या दे दिया है, यूकेलिप्टस ऑयल, टैनिन, अल्कलॉइड्स लाइक कुनैन, मॉर्फिन, दीज आर वेस्ट फॉर द प्लांट बट यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। वेयर आर रेसिन एंड गम्स स्टोर, रेसिन और गम्स कहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, कहाँ पर, ओल्ड जाइलम में, कहाँ पर बात कर रहे हैं, ओल्ड जाइलम में, इन वैक्यूल्स। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, हाउ हेल्प एक्सक्रीजन, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता ही क्या है, लॉस ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, अब जरा देखो इससे रिलेटेड क्या है, कुछ असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। प्लांट्स लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रीजन क्या है, प्लांट यूजुअली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते हैं तो, और रीज़न क्या है, प्लांट यूजुअली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट, क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट को। तो यहाँ पर रीज़न जो है वो क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। सेकेंड असर्शन बेस्ड क्या दिया, इन प्लांट्स देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, प्लांट डोंट हैव ग्रेट डिमांड ऑफ गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, गैस जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सॉरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो क्या है, बोथ ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। द प्लांट्स स्टोर सम वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी पार्ट, क्यों स्टोर करते हैं, उसका रीज़न क्या है, रेफाइड्स आर सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स, क्या है, रेफाइड्स क्या है, सॉलिड वेस्ट है। लेकिन ये क्या है, स्टेटमेंट तो सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्टेटमेंट हो जाएगा। तो बेटा जो ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर 4 टर्म होती हैं, ए बी सी डी। जैसे स्टेटमेंट क्लियर होगा वहाँ पर क्लियर दिया होगा कि अगर ए है तो वहाँ पर क्या होगा, ए और बी दोनों ट्रू होंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तो हम ए को लगाएंगे। अगर बी है, दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो वहाँ पर हम बी को लगाएंगे। इस तरीके से आपको पहले ही टर्म दी होगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गोटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीजन इन प्लांट्स, एक्सक्रीजन का प्रोसेस है गोटेशन, G4। ठीक है, प्लांट एक्सक्रीट वाटर थ्रो हाइड्रोथोर्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा, ए हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सक्रीजन ऑल्सो अकर्स इन प्लांट्स, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू स्टोमेटा, दोनों ट्रू हैं। ठीक है, एक्सक्रीजन की बात करें, एक्सक्रीजन इन एनिमल्स अकर्स थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन लाइक किडनीज एंड लंग्स। से बी पार्ट क्या दिया हुआ है, रीजन क्या दिया, किडनी रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट वाइल लंग्स हेल्प इन रिमूविंग ऑक्सीजन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किडनी रिमूव करती है नाइट्रोजिनस वेस्ट को, ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर देखो जरा कंफ्यूजिंग क्या दे दिया, ध्यान से पढ़ना है कि वाइल लंग्स हेल्प इन रिमूविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करने में लंग्स हेल्प करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को, तो यहाँ पर बेटा क्या है, ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर ये जरा सा वर्ड क्या कर देता है, पूरे सेंटेंस को गलत कर देता है, यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लंग्स किसको रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट असर्शन बेस्ड है, क्योंकि बेटा ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट है। एक्सक्रीजन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच हार्मफुल वेस्ट इज रिमूव्ड, क्या है, एक्सक्रीजन से क्या कर रहे हैं, वेस्टेज मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। रीजन क्या दे दिया, मोड ऑफ एक्सक्रीजन इज सेम इन बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, पॉसिबल ही नहीं है ना, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में दोनों में डिफरेंस है, तो ए तो ट्रू है लेकिन क्या है, आर फॉल्स है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, ए बी सी डी 4 टर्म्स होती हैं जिसके बेस पर हम इनको टिक करते हैं। देखो जरा जैसे इसमें दिया हुआ है, ये मैंने बाद में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर है कि ए क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो वहाँ पर हम ए कर देते हैं सही। ठीक है, बी है तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो वहाँ पर बी टर्म सही हो जाएगी। ठीक है, सी है तो ए ट्रू है बट आर फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस तरीके से रीड करेंगे पहले स्टेटमेंट, फिर उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन सा आंसर सही है। अब बेटा इससे रिलेटेड मैंने असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस की एक वर्कशीट ये आपके पास इंक्लूड कर इसमें इंक्लूड कर दिए, इसको आप रीड करेंगे और देखेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको आप खुद करेंगे। अब यहाँ पर PYQs अगर हम देखते हैं, ठीक है, हाउ डू प्लांट्स एक्सक्रीट देयर वेस्ट, प्लांट किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को, वाई प्लांट्स डोंट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक एनिमल्स, नेम मेन वेस्ट प्रोडक्ट, वही क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन से एक्सक्रीट करते हैं, क्या क्या है, तो वहाँ पर हम वही ट्रिक को फॉलो करेंगे
किस तरीके से करते हैं प्रोसेस हमें पता होने चाहिए, कौन कौन से ट्रांसपिरेशन, गुटेशन और स्टोर करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, ये सारे हमारे प्रोसेस हैं। अब इनमें स्पेशली ऑर्गन्स क्यों नहीं होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि इनमें वहाँ इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट देखने को नहीं मिलती है जितनी हम ह्यूमन बींग में या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू प्लांट एक्सक्रीट CO2 एंड O2, कब, अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है कि CO2 और वाटर दोनों कब रिलीज होते हैं, कब एक्सक्रीट होते हैं। वाई प्लांट एक्सक्रीट CO2 एट नाइट टाइम, केवल CO2 क्या है नाइट टाइम में क्यों रिलीज होती है, तो वहाँ पर हमने कई बार रिपीट कर लिया कि CO2 क्या है दिन के प्रोसेस में क्या है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो जाती है, ठीक है, और O2 क्या है डे टाइम में। O2 डे टाइम में क्यों रिलीज होती है, क्योंकि नाइट टाइम में क्या है जो रेस्पिरेशन है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो हो नहीं रहा, तो नाइट टाइम में जो O2 प्लांट रिलीज की थी तो वो यूज़ हो जाती है। इस तरीके से क्या है दोनों ही प्रोसेस क्या है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो रहे हैं। एक्सक्रीजन है ना, एक्सक्रीजन का हम ध्यान रखेंगे, CO2 नाइट टाइम में और O2 डे टाइम में एक्सक्रीट होती है। हाउ इज़ वाटर वेपर एक्सक्रीट बाय प्लांट्स, व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है, कब चलता है, पूरे टाइम क्या है। वाटर वेपर इज एक्सक्रीटेड 20/7 वाई, प्रोसेस क्या है ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, कहाँ पर लीव्स और लेंटिसेल्स में, ठीक है, जो कहाँ पर होते हैं स्टेम्स में होते हैं पोर्स। ट्रांसपिरेशन एक्चुअल में डिफाइन कर देंगे वहाँ पर, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट सरफेस। हाउ डू प्लांट गेट रिड ऑफ वेस्ट स्टोर्ड इन लीव्स, बार्क एंड फ्रूट्स, किस तरीके से वेस्टेज मटेरियल से रिमूव होते हैं, कैसे, लीव से, बार्क से और फ्रूट्स से, ठीक है, जो भी हमने टर्म्स पढ़ी हैं। लीव से किस प्रोसेस से रिमूव होते हैं, हाइड्रोथोड से, और स्टोमेटा से कौन से प्रोसेस थे, गुटेशन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। बार्क से किस प्रोसेस थे, क्या कर रहे थे, सीक्रेट कर रहे थे, वहाँ पर क्या कर रहे थे, सीक्रेट कर रहे थे। और लीफ का लीफ फॉल इन, हाँ लीफ का भी क्या हो रहा है बेटा, लीफ फॉल इन ऑटम सीजन, ये सारे हमने अच्छे से रीड कर लिए हैं। वाट आर रेफाइट्स, रेफाइट्स देखो यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है, रेफाइट्स है क्या, गिव एग्जाम्पल। रेफाइट्स आर सॉलिड वेस्ट बॉडीज स्टोर्ड इन फ्रूट्स मेड ऑफ निडल शेप्ड कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल, ठीक है। अब इसके यूज़ भी लिख सकते हैं कि पहला यूज़ क्या है कि ये सॉलिड फॉर्म में फ्रूट में स्टोर हो जाता है, दूसरा यूज़ क्या है कि हर्बीवोर से डिफेंस के लिए वर्क करता है। वाट इज एक्सक्रीजन ऑफ गम एंड रेसिन इन प्लांट्स, गम और रेसिन का एक्सक्रीजन क्या है, हाउ सीक्रेटेड, अब ये जो सीक्रेशन है स्टोर है ना, क्या है ये सीक्रेशन पार्ट के वेस्टेज मटेरियल है कि प्लांट सीक्रेट वेस्ट एज गम एंड रेसिन फ्रॉम स्टेम एंड ब्रांचेस, सम वेस्ट इज ऑल्सो एक्सक्रीटेड इनटू द सॉइल एंड देम अराउंड देम, अदर वेस्टेज। अब यहाँ पर हमने क्या बात की, किस सॉइल में किस तरीके से एक्सक्रीजन होता है, कौन सी फॉर्म में होता है, यहाँ पर क्या है लेटेक्स, टैनिन, एल्कलॉइड एंड एसेसियलॉइड, कहाँ पर ऑल्जाइलम और वैक्यूल्स में। हाउ डज एक्सक्रीजन टेक्स प्लेस इन अमीबा, अमीबा के में एक्सक्रीजन कैसे होता है, हमने बात की थी कि CO2 स्किन से, सॉरी अमीबा में स्किन नहीं क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन से, और दूसरा क्या था नाइट्रोजिनस वेस्ट वहाँ पर वैक्यूल से, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से, ठीक है। व्हाट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड हाउ इज एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अमीबा, क्या है और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का किस तरीके से वर्क करती है, तो किसकी बात करेंगे, अमोनिया। जब वाटर एनिमल की बात हुई तो वहाँ पर क्या आएगा, अमोनिया आएगा बेटा। द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज अ स्मॉल क्लियर वैक्यूल दैट कलेक्ट अमोनिया एंड एक्सेस वाटर इनसाइड अमीबा। इट ग्रेजुअली स्वेल्स, क्या है, इट ग्रेजुअली स्वेल्स एंड देन बस्ट टू एक्सपेल वेस्ट एंड वाटर आउटसाइड, कहाँ पर, बॉडी के आउटसाइड। वाट आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन थे, मॉइस्ट स्किन, दूसरा क्या था आपका नेफ्रीडिया, ठीक है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्पेशल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थवॉर्म, द मॉइस्ट स्किन ऑल्सो एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेफ्रीडिया रिमूव, नेफ्रीडिया से मैंने बोला था कि एंड फॉर नेफ्रीडिया एंड फॉर नाइट्रोजिनस वेस्ट, मेनली फॉर अमोनिया। द मॉइस्ट स्किन परमेबल स्किन अलाउ CO2 एंड CO2 के लिए एंड अमोनिया टू डिफ्यूज़ आउट, वहाँ पर अगर स्किन से हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। अब यहाँ पर देखो बेटा ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन और गुटेशन, ट्रांसपिरेशन और गुटेशन दोनों में हमने देखा था कि ट्रांसपिरेशन में क्या डिफरेंस है और गुटेशन में क्या है। ट्रांसपिरेशन क्या था, स्टोमेटा को यूज़ करता है, गुटेशन क्या है, हाइड्रोथोड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। वाट आर हाइड्रोथोड्स एंड स्टोमेटा लोकेटेड, कहाँ पर उनकी पोजीशन क्या होती है, ये क्वेश्चन हम कई बार रिपीट कर चुके हैं।
अब इससे रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, देखो जो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस क्या है 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में भले ही नहीं है लेकिन 2 या 3 मार्क्स में देखने को मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट एक्सक्रीजन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और वाई प्लांट्स डोंट नीड एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक एनिमल्स। अगर आपसे सिंपली ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि प्लांट्स में ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को क्यों नहीं मिलते एनिमल्स की तरह, तो वहाँ पर हम क्लियर कर सकते हैं। अगर डिफरेंस नहीं भी पूछा तो इस मेथड से भी क्लियर कर सकते हैं। क्या पूछा हुआ है कि प्लांट्स में क्या है, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता है, लेस नाइट्रोजनस वेस्ट देखने को मिलता है और वहाँ पर यूरिया नहीं होता, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्टेज मटेरियल के थ्रू। दूसरा क्या है, स्टोर वेस्ट इन डेड परमानेंट टिश्यूज़, कि वहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में इस तरीके से स्टोर नहीं कर सकते, है ना। अगर यूरिया स्टोर होगा तो क्या होगा, हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को ही डैमेज कर देगा, ठीक है। ऑयल जाइलम में कैसे स्टोर करते हैं, ऑयल जाइलम में वैक्यूल्स में, बार्क में, लीव्स में, कोई भी किडनी और नेफ्रॉन नहीं मिलती। और एक्सक्रीट वाया स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, गोटेशन प्रोसेस है। स्टोरेज एंड शेडिंग ऑफ लीव्स बार्क टू रिमूव वेस्ट। जस्ट अपोजिट एनिमल में हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि एक्सक्रीजन किस प्रोसेस से, किडनी के थ्रू होता है, पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है। क्यों होता है, इसकी वजह क्या, हाई मेटाबॉलिज्म, मोर प्रोटीन लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ब्रेक डाउन मोर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है। कैन नॉट स्टोर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा हमारी बॉडी के लिए। मस्ट रिमूव कंटिन्यूसली, टाइम टाइम पर हम रिलीज करते हैं, है ना। नीड स्पेशलाइज्ड किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, जिसमें क्या है 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, जो क्या है हमारी किडनी का फंक्शनल यूनिट है। 180 लीटर फिल्ट्रेट डेली का फिल्ट्रेट क्या होता है, 180 लीटर होता है, जो क्या है यूरिन की फॉर्म में 1.5 लीटर रह जाता है, और जिसमें क्या है 3 स्टेप की फॉर्म में ये प्रोसेस फॉलो होता है। फेलियर रिक्वायर्स ट्रांसप्लांट, अगर फेल हो जाता है तो क्या है, वहाँ पर किडनी फेल हो जाती है, तो वहाँ पर 2 मेथड थे, क्या थी आपके, ट्रांसप्लांट और दूसरा क्या था, डायलिसिस प्रोसेस था। तो दोनों क्या हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं, ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। एक्सप्लेन ट्रांसपिरेशन, गोटेशन एंड रोल ऑफ स्टोमेटा एंड हाइड्रोथोर्स इन प्लांट एक्सक्रीजन। चारों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से पूछ ली है 3 मार्क्स में, ठीक है, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सक्रीजन इन प्लांट्स। डिफरेंट मेथड्स क्या थे आपके, मेथड पूछे, हाँ, डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सक्रीजन इन प्लांट्स कौन कौन से थे आपका, गैसेस के लिए आपका रेस्पिरेशन, और क्या था, फोटोसिंथेसिस था, वाटर ट्रांसपिरेशन, स्टोरेज, शेडिंग, सीक्रेशन, ये सारे बेटा ये ट्रिक को यूज़ करके आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ट्रिक्स क्या थी हमारी, TGSSR, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एंड रिमूव्ड इन प्लांट्स, ये देखो जरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या बात की हमने, डिस्क्राइब हाउ वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड। जैसे प्लांट्स में क्या है, ये इनको स्टोर कर रहे हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग के लिए कैसे यूजफुल हैं। स्टोर्ड इन ऑयल जाइलम डेड टिश्यूज, वैक्यूल्स ऑफ लीफ सेल्स एंड बार्क, कहाँ पर, कौन कौन से हैं, रेजिन, गम, लेटेक्स, रबर, ऑयल, टैनिन, एल्कलॉइड एंड कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये सारे क्या हैं, स्टोर्ड क्या है, वेस्टेज मटेरियल हैं प्लांट्स में। रिमूव कैसे करते हैं, रिमूव करने के लिए कौन से बोले कि लीफ का फॉलिंग, बार्क शेडिंग, है ना, पीलिंग और बार्क, फ्रूट, जो फ्रूट्स होते हैं, राइप फ्रूट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, प्लांट से, हाँ। नेक्स्ट देखो जरा, यूजफुल ऑफ ह्यूमन, हाँ, यहाँ पर देखो जरा, यूजफुल टू ह्यूमन, कि ये जो वेस्टेज मटेरियल है ह्यूमन के लिए कैसे यूजफुल है। किसकी बात की, जो हम गम और रेसिन की बात कर रहे थे। अब ये क्या है, रबर इज़ यूज्ड फॉर टायर्स, रेसिन आर यूज्ड इन वार्निशिंग, हमने सारे यूज़ की बात की थी, ठीक है। असेंशियल ऑयल क्या था आपका, यहाँ पर कहाँ पर यूज़ करते हैं, परफ्यूम और मेडिसिन में। टैनिन आर यूज्ड फॉर लेदर टैनिंग, एल्कलॉइड आर यूज्ड एज मेडिसिन, कुनैन फॉर मलेरिया, मॉर्फिन एज अ पेन किलर। दस प्लांट वेस्ट बिकम वैल्यूएबल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। लास्ट में आपका क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमने देखा कि जो भी प्लांट्स में एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो क्या है, प्लांट्स के लिए यूज़फुल नहीं है, स्टोर हो रहा है बॉडी में, और क्या कर रहे हैं, सीक्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या है, हम ह्यूमन बीइंग में यूज़फुल है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ में, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के साथ में।
कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में और उसको इजी लैंग्वेज में समझने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, आपके एक छोटे से लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने का, कुछ नया करने का। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जैसे आपको हेल्प मिलती है इस तरीके से आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले। थैंक यू।